morning, students. Today we are going to start the chapter number 13, which is hydrocarbon. So, first question which arises in our mind is what are the hydrocarbons? So, there is a solution. Hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen. Means these compounds are made only by the carbon and hydrogen. These are called hydrocarbons. जैसे example है CH4, methane. Methane is the natural gas. It is also called marsh gas. You can see it is formed only by the carbon and hydrogen, so that's why it is a hydrocarbon. Okay, so the next point is they are obtained mainly from the coal and petroleum, so they are the sources of the energy. The example is LPG, like CNG. These are the sources of energy, and these are the hydrocarbons obtained from coal and petroleum. On the basis of structure, hydrocarbons are classified as open chain and closed chain hydrocarbons, ठीक है, which are further classified as alkanes, alkenes, alkynes. मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी ये बताया था. alkanes which have the carbon carbon single bond, alkenes which have carbon carbon double bond, and alkynes which have carbon carbon triple bond. Okay, and cyclic, alicyclic, and the aromatic compounds. Okay, non aromatic and aromatic compounds. So first we will start with the alkanes. After that we will go for the alkenes and alkynes. Okay, so alkanes is what? Alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons. Means they are not cyclic, they are non cyclic, acyclic compounds. Means इनमें आपको कार्बन की क्या मिलेगी? लॉन्ग चेन मिलेगी, साइक्लिक चेन नहीं मिलेगी. ओके, सो एलिफेटिक सेचुरेटेड. अब सेचुरेटेड का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कार्बन और कार्बन जो है उनके बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. और वी कैन से कार्बन की जो ऑल फोर वैलेंसीज है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होगी. मींस देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दे आर कॉल्ड पैराफिन्स. पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव. सो दे आर लेस रिएक्टिव, they are called paraffins. Okay, and all carbon atom joined by single covalent bond. General formula of alkanes is CnH2n plus 2. C or ये hydrogen. So suppose the number of carbon is n, so number of hydrogen in that molecule will be 2n plus 2. Okay, so I'm taking example here. Suppose the carbon number of carbon is 2, so what will be the formula of that alkane? So 2, it means H will be 2 into 2 plus 2. Okay, so number the alkane which is 2 carbon that have formula C2, और यहाँ पर हम इसको solve करेंगे 4 in 4 plus 2 तो 6 हो जाएगा. that is the ethane. So that will the alkane with 2 carbon is ethane, and number of hydrogen will be 6. Okay, so this is the formula CnH2n plus 2. Simplest alkane is methane, because simplest का मतलब हो गया कि least कार्बन चेन. एक कार्बन से कम तो क्या कार्बन होगा? सो दैट्स वाई एक कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा? मीथेन होगा. कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 है. ऑल दी 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मीथ एन. ओके, वन कार्बन इसलिए हम बोलते हैं मीथ, और सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इसलिए बोलते हैं उसको एन. तो इसका नेम हो जाएगा मीथ प्लस एन, है ना. ये है ये है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन क्या होगी? इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी. इसमें सेंटर में रहेगा कार्बन, एंड दीज ऑल दी 4 हाइड्रोजन्स आर सिचुएटेड ऑन द टेट्राहेड्रॉन. एक यहाँ पर ऑल दी 4 एंगल्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है 108.7 पिकोमीटर है कार्बन हाइड्रोजन, और जो ये बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट. ओके, टेट्राहेड्रल एंगल जो कि होता है इन इन एल्केन. सपोज कार्बन 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 की पूरी चेन बन रही है, कोई भी एल्केन है. द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन इट इज 154 पिकोमीटर, एंड दी अब इसके बाद हाइड्रोजन भी होगा ना, तो वो बॉन्ड लेंथ होगी 112 पिकोमीटर. तो ये आपको याद रखना है, कार्बन कार्बन 154, कार्बन हाइड्रोजन 112 पिकोमीटर. now now the next important topic is nomenclature and isomerism of alkane. So okay, the nomenclature of hydrocarbon we have already studied, but here I am taking some examples. Suppose this is the hydrocarbon with 4 carbon, and we can say how much carbon are here? 4 carbon. और हाइड्रोजन कितना है? 3 plus 2 5, 5 plus 2 7 plus 3 10. अब ये क्या हो सकता है? ये CnH2n plus 2 फॉर्मूला इस पे सेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. 4 into 2 plus 2 10 होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज एल्केन. तो 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन को बेटा हम क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं. तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? सफिक्स एन लग. ये प्राइमरी सफिक्स है, इट इज एन. तो द नेम ऑफ दिस इज
ब्यूटेन। और आगे अगर एन लिखा हो इसका मतलब है नॉर्मल चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। सो सपोज द क्वेश्चन इज हाउ मच चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर द कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इसके बारे में दैट ये यहाँ पर 4 कार्बन चेन आइसोमर्स का मीनिंग होगा सेम केमिकल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला रहेगा? C4H10, बट दे हैव डिफरेंट नंबर, डिफरेंट चेन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन। सपोज यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर बेटा 1 2 और 3 IUPAC नेमिंग करेंगे तो 3 कार्बन की चेन है। एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में साइड चेन में लग गया है तो 3 कार्बन, दिस इज 4 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन, बट फॉर्मूला सेम है इसलिए इनको बोलेंगे चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन पेंटेन, जो नॉर्मल पेंटेन्स हैं उसके कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है? तो फर्स्ट वाला ये नॉर्मल, सेकंड वाला ये वाला आपका आइसो हो जाएगा जिसपे सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल अटैच्ड है। और सपोज हम इसको 3 कार्बन चेन में कन्वर्ट कर दे तो ये बन जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन यानी कि नियोपेंटेन। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन चेन में है और इसमें 3 कार्बन की चेन है। दीज आर द चेन आइसोमर्स। ओके, ड्रॉ द, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि ड्रॉ द ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर्स ऑफ एन हेक्सेन। तो यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। ये आपको खुद से बना के चेक करना है अपने नॉलेज को कि आपने क्या सीखा है इसमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं हम देखते हैं। कुछ आइसोमर्स है दोज आइसोमर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड देयर एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी फेल्ड। उन दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग आपको फील नहीं होगी अंडर नॉर्मल कंडीशन, बट एट लो टेम्परेचर जब इसकी एनर्जी बहुत लो हो जाएगी, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तब इनकी एग्जिस्टेंस आपको फील होगी। ओके, दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. So at low temperature when one isomer do not get adequate energy to convert into another, their existence can be felt. Such type of isomers are called conformational isomers. These are formed due to the free rotation. अब ये free rotation कैसे होता है? सपोज ये आपका कुछ कंपाउंड है, ये कनेक्टेड इस बॉन्ड से और ये आपका एक कंपाउंड है। आप फ्री रोटेशन का मतलब आप इसको रोटेट कर, इसको होल्ड करो, इसको रोटेट कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो इसको होल्ड करके। तो आप इसको रोटेट करोगे, पहले सपोज कोई भी स्ट्रक्चर था उससे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और ईच एंड एवरी एंगल यू कैन फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर। सपोज को थोड़ा सा आपने क्या किया, इधर थोड़ा सा इधर रोटेट किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, तो जो एंगल है वो तो चेंज हो रहा है इसके इसके रेस्पेक्ट में। तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम है और द अनदर वन विच हैज द लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दीज टू आइसोमर्स आर कोल्ड। अच्छा एक बात और यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक डेफिनेशन और है। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है एंड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन ओनली सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर they are called as rotational isomers and this phenomenon is called rotational isomerism also. Conformational isomerism of ethane, तो सिंपलेस्ट इथेन का ही बनेगा, एटलीस्ट 2 कार्बन बॉन्डेड होने चाहिए, 1 कार्बन पे कोई कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं बन सकता। दे आर टू स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स। तो यहाँ हम देखेंगे ये वाला स्टेगर्ड, स्टेगर्ड में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे एक पॉइंट आगे है ये वाला, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इसको मानेंगे फर्स्ट कार्बन और यहाँ पर इससे 3 कार्बन अटैच है। इथेन क्या होता है? इथेन होता है CH3 और CH3। तो एक कार्बन को हम फ्रंट पे बना रहे हैं और एक कार्बन को पीछे बना रहे हैं इस सर्कल से, ये वाला, और इसका जो हाइड्रोजन है वो सपोज ये है और ये है और ये है। अब यहाँ पर आप चेक करोगे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस यहीं पर है। इस थोड़ा सा इसको हम इधर इधर ले आते हैं इस साइड्स में, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा जिससे इनकी एनर्जी के अंदर वापस डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। सो दैट्स वाई ये ऐसी पोजीशन है जहाँ पर हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना। ये आगे वाला कार्बन है और ये जो ये सर्कल वाला पीछे वाला कार्बन है इसको हमने ऐसे बना दिया। ओके, इसके हाइड्रोजन्स ये रहे और उसके हाइड्रोजन्स ये रहे, समझ रहे? ये हाइड्रोजन्स हो गए इसके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसको बोलते हैं स्ट्रेगर्ड, जिसकी एनर्जी मिनिमम है। और यहाँ पर देखो एच एच मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, बहुत क्लोज, एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं, बिल्कुल बहुत क्लोज है ये। तो ये एक्लिप्स है और मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो एक्लिप्स वो फॉर्म है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और स्ट्रेगर्ड वो फॉर्म है जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है। इसके बीच में बहुत सारे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं, बट दीज आर टू मेन, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बोथ? कितना एनर्जी चाहिए इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए? दैट इज 3 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, 3 किलो कैलोरी पर मोल एट ए गिवन मोमेंट। मोस्ट ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल्स वुड एग्जिस्ट इन द स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। जनरली किस में रहते हैं? स्टेगर्ड में रहते हैं, ड्यू टू द इट्स मिनिमम एनर्जी। कोई भी कंपाउंड मिनिमम एनर्जी वाली कंडीशन में रहना पसंद करेगा एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, अब है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, दैट इज द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स।
कैसे हम एल्केन बनाएंगे। तो फर्स्ट है आपका फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड का मीनिंग है जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, और हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इक्वेशन या रिएक्शन जो है। यहाँ पर देखो आप, ये क्या है, इथीन है, इसको इथाइलिन भी बोलते हैं। ये अनसेचुरेटेड है, बिल्कुल ये अनसेचुरेटेड है बिकॉज इट हैज डबल बॉन्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और प्लेटिनम एट 300 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 और 3, तो ये बन गया CH3 यानी कि इथेन। इट इज कॉल्ड सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शंस। ओके, या रिडक्शन बोलते हैं कि रिडक्शन हो रहा है इसमें। आप देखो सिंपल से हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन होता है, सिंपल। ठीक है, वी कैन यूज हियर निकल और प्लेटिनम ऑल्सो। तो यहाँ पर एक रिएक्शन फिर से हमने लिखी है, इथाइन ले लिया, सपोज ये इथाइन ले लिया, H2, ये कन्वर्ट होगा किसमें, पहले इथीन में, फिर कन्वर्ट होगा किसमें, इथेन में। और डायरेक्ट लिखना चाहें तो 2H2 लिख दिया है, मीन्स 4 हाइड्रोजन ये कंबाइन होंगे। यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, फर्स्ट में एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, सीधा आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, जैसे RCl, एल्काइल का मतलब होता है आर ग्रुप, आर ग्रुप मतलब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे ऑल आर, तो उनको डिनोट करते हैं आर से। तो ये आपका RCl है, जिंक से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दो Cl इसको मिल जाएंगे, ये बन जाएगा ZnCl2, और ये R और ये H कनेक्ट होकर क्या बना देगा, एल्केन। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ CH3Cl, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ हमने HCl, और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, Zn की। तो ये CH3 यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, देन यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो निकल गया Cl और ये Cl, ZnCl2, ये H इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा CH3H, और वी कैन से इट इज CH4, ये मिथेन है आपका। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी एल्किन बना सकते हो, बस डिपेंड करता है कि ये कार्बन चेन कितनी लंबी है। इज इट क्लियर। बाई वुड्स रिएक्शन, ये रिएक्शन 12th में भी वापस रिपीट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जस्ट कार्बन नंबर चेन में कार्बन नंबर को डबल करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। कैसे होती है, वी कैन यूज हियर एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम 2Na और ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, C2H5Br और C2H5Br, देयर आर ट्वाइस इथाइल ब्रोमाइड, और 2Na से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 2NaBr, और ये C2H5 C2H5 से कनेक्ट होकर के N ब्यूटेन बना लेता है। सो आपको जस्ट डबल नंबर वाला क्या मिल जाएगा, एल्काइल, सॉरी एल्केन मिल जाएगा, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मैंने दे दिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2Cl, दैट इज प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन, उसको आपको इसे रिएक्शन करवानी है और बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सेचुरेटेड का मीनिंग है सिंगल बॉन्डेड, डी कार्बोक्सिलेशन हम अभी पढ़ेंगे, यहाँ पर CO2 रिलीज होगी, और मोनो कार्बोक्सिलिक मतलब ऐसा एसिड जिसके अंदर क्या है, एक COOH है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। ये हो गया आपका RCOONA, ये कैसे बना, ये RCOOH था, इसकी बेस से रिएक्शन करवा दी सपोज NaOH से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये OH निकल गया, ये H निकल गया, तो ये Na यहाँ पर जाकर के ऐड हो गया, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो ये आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट है, प्लस NaOH करवाएंगे। स्टूडेंट्स रिमेंबर, वेन एवर द NaOH प्लस CaO, NaOH यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये देखेंगे आप यहाँ पर NaOH प्लस CaO, इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इसका एक ही काम है CO2 को निकालने का, डी कार्बोक्सिलेशन करने का। सो वेन एवर यू फाइंड अ रिएक्शन इन विच द NaOH प्लस CO इज प्रेजेंट, डेफिनेटली आपको क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन करना है। और यहाँ देखेंगे हम, जैसे ये ले लिया हमने NaOH, तो ये क्या बन जाएगा R, और यहाँ से H, बाकी Na, Na टू, ये CO2 और यहाँ से एक O, तो ये Na2CO3 और ये बन गया RH। ओके, NaOH प्लस CO इन द हीट। तो यहाँ हम चेक करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज वी आर टेकिंग अ कार्बोक्सिलेट विच हैज़ 2 कार्बन प्लस NaOH प्लस CO, और यहाँ पे Na2CO3 हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगा। बट हमारे पास जो अभी एल्केन बनेगा वो लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला मिलेगा, मीन्स 2 कार्बन यूज किए थे तो हमें 1 कार्बन मिल रहा है, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, और यहाँ पर CO2 निकल रही है। इज इट क्लियर। So this method is important to decrease the length of carbon chain. Woods reaction is important to increase the carbon length of carbon chain, but यहाँ पर ये decrease करेगी। अब नेक्स्ट हमारा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस है। कोलबे साइंटिस्ट का नेम है, उसने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइसिस है तो एक एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड होगा। एक तो एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस है, कैसे होती है हम देखते हैं यहाँ पर। 2RCO के, यू कैन यूज पोटेशियम, यू कैन ऑल्सो यूज सोडियम, जैसे हमने पहले यूज किया था। तो ये आपका कौन है, पोटेशियम
है ना, कार्बोक्सिलेट है, प्लस 2H2 और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये पूरी रिएक्शन होगी। यहाँ पर 2R मीन्स R और R बन जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी, H2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे बेटा कैथोड पे और ये बनेगा एनोड पे। तो एनोड पे हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो when a concentrated aqueous solution of the sodium और potassium salt of monocarboxylic acid like CH3COH, तो ये सिंपल था, कुछ भी नहीं है, CH3COOH था, यहाँ से H रिमूव होगा और Na आ जाएगा या फिर K आ जाएगा, जिसको बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड एल्केन इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर हम इसकी स्टेप्स भी समझ लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन और लिखी है, 2CH3CO के 2H2O, तो ये CH3CH3 बन रहा है, ये जस्ट इसका एग्जाम्पल है, आर की जगह मैंने CH3 मेंशन कर लिया है। अब स्टेप्स क्या होती है, फर्स्ट में जो CH3CO के आपका जो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू आयंस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन। एनोड पे क्योंकि नेगेटिव आयन जाएगा तो 2CH3CO मैंने गो टू द एनोड एंड दे रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन, हाउ मच, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे फ्री रेडिकल्स में। दिस 2 फ्री रेडिकल्स में से ये CO2 जो है ये निकल जाएगा अलग और CH3CH3 कनेक्ट होकर के क्या बना लेगा, इथेन। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपका जाएगा हाइड्रोजन, वहां पर वे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वो H2 यानी हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? और अगला है अपना कन्वर्ट। अब आपके सामने क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है आपको सोडियम प्रोपियोनेट को एन ब्यूटेन में। तो सोडियम प्रोपियोनेट क्या होता है, जिसमें प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। तो C2H5C मैंने ले रखा है 3 कार्बन से, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सो आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए, माइंड यूज़ कीजिए कि बाई विच रिएक्शन यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू एन ब्यूटेन। ओके, सिमिलर है, आपको करना है इसी रिएक्शन से है, बट आपको खुद से करना है। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, बहुत ईजी है, आपने रिडक्शन लेना है। एल्कोहल, एल्कोहल मीन्स OH ग्रुप, ROH। एल्कोहल क्या होता है बेटा, ROH। अब ये R की जगह में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, वी कैन यूज एनी ऑफ दिस। ओके, सो यहाँ पर हम ले रहे हैं इथाइल एल्कोहल दैट इज CH3CH2OH प्लस 2HI लेंगे तो HI ब्रेक होगा, ऑब्वियसली अच्छा न्यूक्लियोफाइल है आई, तो ये आई ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, 2H चाहिए तो I2 का फॉर्म होगा, 2 हाइड्रोजन फ्री हो जाएंगे। और 2 हाइड्रोजन फ्री हो जाएंगे तो क्या होता है देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो यह बनेगा CH3 और CH3। ठीक है, प्लस इसको मिल जाएगा एक H, तो ये बन जाएगा H2O, और एक H किसको मिल गया, इसको मिल गया, बस H2, और I जो था वो I2 की फॉर्म में निकल गया। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे सेम कार्बन ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। वुड्स रिएक्शन में डबल हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं बेटा, आर के साथ अगर CHO अटैच्ड है ये एल्डिहाइड है, और आर पे अगर C डबल बॉन्ड O और इधर भी आर है तो ये आपका कीटोन ग्रुप होता है। तो वी हैव बोथ काइंड ऑफ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे ये वाला एल्डिहाइड, CH3CH2 इज कॉल्ड एसिड एल्डिहाइड या फिर इथेनॉल बोलते हैं। इसके हम क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 4 हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजनेशन कर रही है ये, इसको मैं इथेनॉल को ऐसे लिख देता हूँ, ये इस तरह से ग्रुप होता है, कार्बोनिल कंपाउंड है ये। अब यहाँ पर ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4H। ठीक है, तो 4H में क्या होगा, H H H और H, तो यू कैन हियर से यू कैन सी हियर द H2 इज फॉर्म्ड, डबल बॉन्ड इज ब्रोकन, तो ये बन गया CH3, ये आपका CH2 और ये H, तो CH3 हो जाएगा, दैट इज द इथेन। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, CO का O के साथ में H2 निकल जाएगा, इस कार्बन को मिल जाएंगे 2 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नीचे समझा रखा है किस तरह से हुआ है, H और यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 ठीक है, और हम अच्छे से देखें इसको, तो ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये बन गया H2O, ये बन गया CH3 योर प्रोपेन। सो जब आप यहाँ पर एसीटोन यूज़ करोगे 3 कार्बन्स में तो यहाँ पर 3 कार्बन्स वाला प्रोपेन मिलेगा, 2 कार्बन्स यूज़ करोगे 2 कार्बन वाला इथेन मिलेगा। दैट इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द एल्केन। इसके बाद हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही है, एक बार आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे और देन यू कैन आस्क मी द डाउट्स एंड द क्वेश्चंस। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बेसिक्स हमको अच्छे से क्लियर करने हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।